جیسا کہ ہم نے دیکھا، جو الفاظ مقامی تفہیم کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور سیکھے جانے والے مضامین اکثر جو ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، جیسے اندر باہر، اوپر نیچے، یہ سب اسی طرح ہم ایسے کئی الفاظ اور بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان میں ایک اور تصور جو ہم بچوں کو سکھائیں گے وہ ہے قریب اور دور۔ یہ جو قریب اور دور ہے، چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہوئے قریب دور ہم سکھاتے ہیں۔ بعد میں جب آگے کی کلاس میں ہم پیمائش کا سبق پڑھائیں گے، اگر یہ تصورات اچھی طرح سمجھے ہوں تو پیمائش کی بنیاد پکی ہوگی۔ اس قریب اور دور کو ہم تدریسی وسائل TLM کو استعمال کر کے کیسے سکھاتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ ریفرنس کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے، اور ایک بڑی چیز کا استعمال کرتے ہوئے اور ایک دوسری چیز اس کے قریب رکھیں گے، اور ایک دوسری چیز تھوڑا دور رکھیں گے، ہے نا؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ سرخ مکعب ہے اور یہ نیلے رنگ کی مکعب ہے نا؟ اور یہ پیلی پٹی ہے۔ اب سرخ مربع مکعب کے بغل میں کیا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ نیلا مکعب۔ یہ بہت قریب ہے سرخ مکعب کے، یہ آپس میں بہت قریب ہیں، ہے نا؟ کیا یہ اس کے قریب ہے؟ نہیں، وہ تھوڑی دور ہے، وہ اس کے بہت دور ہے۔ اگر اس سے موازنہ کریں تو وہ بہت دور ہے۔ اس طرح ہم ایک اور چیز لیں گے۔ یہ کون سا رنگ ہے؟ یہ سبز رنگ ہے۔ یہ سبز رنگ کی چیز کو یہاں رکھیں گے اور اس پیلے والے کو یہاں رکھیں گے۔ اب سرخ مکعب کے قریب کون سا ہالہ ہے؟ کون سے رنگ کا ہالہ ہے؟ سبز رنگ کا ہالہ سرخ رنگ کے مکعب کے قریب ہے۔ پیلا ہالہ بہت دور ہے نا؟ اب پیلے رنگ کا ہالہ بولے گا، ارے میں اتنی دور کیوں ہوں؟ میں بھی قریب آتا ہوں۔ ٹنگ 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 ٹنگ، بچوں کے ساتھ تھوڑا کھیلیں۔ اب دونوں ہالے کہاں ہیں؟ دونوں بھی سرخ مکعب کے بہت قریب ہیں۔ اس طرح سے ہم الگ الگ قسم کی مشق بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہم ان تدریسی وسائل کو دوسری ایکٹیویٹیز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے کلاس روم میں ہم بچوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں ان میں سے دونوں کو بلاؤں گی۔ زید یہاں کھڑا ہو جاؤ، فاطمہ تم وہاں دور کھڑی ہو جاؤ، قریب آؤ۔ اس طرح کی مشق ہم کلاس روم میں کر سکتے ہیں۔ اور تم بچوں کو اپنی کلاس روم میں کہو، اسکول کے بغل میں کچھ پیڑ ہیں۔ گلاب کا پودا کلاس کے بالکل باہر ہے، ناریل کا پیڑ تھوڑی دور ہے، تو بتاؤ ہماری کلاس کے بالکل قریب کون سا پودا ہے؟ وہ کہیں گے گلاب کا پودا۔ دوری پر کیا ہے؟ ناریل کا درخت دوری پر ہے۔ اس طرح سے ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ اسی کو ہم نوٹ بک میں، خانہ دار نوٹ بک میں تصویریں بنا کر بھی دکھا سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو تصویریں بنانا بہت پسند ہوتا ہے، مگر کچھ بچوں میں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ مگر ہمیں ان کی تنقید نہیں کرنا ہے۔ تو کچھ بچوں کو یہ بالکل پسند نہیں ہوتا، انہیں مجبور نہیں کریں گے۔ کلاس روم میں ایک بکسا بنا لیں گے، اس میں پیپر کٹنگز جمع کر لیں گے۔ نیوز پیپر میں آنے والی تصویروں کو نوٹ بک میں چپکانے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ان کو بچوں کی نوٹ بک میں چپکانے کے لیے کہیں گے۔ جن بچوں کو تصویر بنانا پسند نہیں ہے، ان کو بوجھ نہیں لگے گا یا استاد کی ڈانٹ پڑنے کا خوف نہیں رہے گا۔ اس طرح اس تصور کو ریپریزنٹ کریں، اس کو بتائیں، وہ اسے خوشی سے کریں گے۔ ان کو یہ مشق سزا نہیں لگے گی۔ قریب اور دور ہم تصویروں کے ذریعے بتائیں گے۔ کون سی تصویر بنائیں گے؟ کوئی بھی ایک چیز۔ گھر کی تصویر بنائیں گے۔ تم سب کو گھر کی تصویر بنانا آتا ہے؟ گھر کی کھڑکیاں اور دروازے سب بنائیں گے۔
घर बन गया। घर के बगल में क्या रहता है? क्या बनाएंगे? फूल का पौधा बनाए। अब घर से दूर क्या है? कहो। नारियल का दरख्त है। दूर से पहाड़ भी नजर आ रहे हैं। बताओ तो क्या सूरज करीब रहता है? नहीं ना, दूर रहता है ना? सूरज को दूर बनाएंगे। अभी बच्चों ने तस्वीर बना ली है, इनको इस पर गौर करने का मौका देंगे, मगर बच्चे मजमून से हट न जाएं इस बात का ख्याल रखेंगे। तस्वीर बनाते वक्त बच्चों के जहन में तस्वीर बनाने का मकसद चाहिए। करीब और दूर के ताल्लुक से तस्वीर बना रहे हैं, ये इन्हें भूलना नहीं चाहिए। उस्ताद तस्वीर बनाने के लिए कहें तो आजादी मिल गई और कुछ भी बनाएं, ऐसा न हो। उन्हें बड़ी शफकत से समझाएं और उन्हें वजाहत करने के लिए कहें। बच्चे बड़ी दिलचस्पी से वजाहत करते हैं, जिससे असातिज़ा को कद्र पैमाई में भी आसानी होती है। इस तस्वुर को क्या उन्होंने समझ लिया? ये क्या है? ये घर है। ये क्या है? पौधा है। पौधा कहाँ है? घर के बगल में है। ये क्या है? ये सूरज है। सूरज ऊपर है। वेरी गुड, वो तस्वुर भी इनको मालूम हुआ है। सूरज दूरी पर है, करीब है। यही अल्फाज इनकी जबान पर लाने के लिए सवालात के जरिए इनको समझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम उन्हें समझाएंगे। इसी तरह दूर, करीब ये अल्फाज हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके मुतालिक हम बच्चों को समझाएंगे। हम बच्चों को गुफ्तगू के जरिए मैसूर कितनी दूर है, करीब है क्या, नहीं बहुत दूर है, इस तरह से, या कोई और चीज लेकर करीब है या दूर है। क्लासरूम के अंदर ही मेज पर चौक के बॉक्स रखी हुई है। मैं इसको ले रही हूं। ये बहुत करीब है, ये मैं ले रही हूं। लेकिन डस्टर बहुत दूर है, क्या तुम ले सकते हो? तो यहां मैं एक तरफ डस्टर लाने के लिए भी कहूंगी। इससे लफ्ज दूर का इस्तेमाल बच्चों की समझ में आ जाएगा। इस तरह से वो करीब और दूर इनका इस्तेमाल समझ जाएगा। इस तरह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों को सिखा सकते हैं। आगे जो हम सीख रहे हैं वो है ऊंचा और नीचा। चलिए इस तस्वुर को हम देखेंगे। करीब और दूर पैमाइश को समझने के लिए ये बुनियाद है, ये हमने समझा। इसी तरह छोटा और बड़ा भी पैमाइश सबक के लिए बुनियाद है। अब हम इसको समझाने के लिए चंद टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे। ये सुर्ख रंग की पट्टी कैसी है? इसका रंग सुर्ख है, सही है। क्या ये छोटी है? नहीं, नहीं, ये बहुत बड़ी है। ये कौन से रंग की है? ये सफेद रंग की है। ये छोटी है या बड़ी? अगर इससे मवाजना करेंगे तो ये छोटी है। अगर इसको इस तरह खड़ा करेंगे तो ये सुर्ख पट्टी ऊंची है, बहुत ऊंची, और ये छोटी है। ये बहुत छोटी है ना? ये ऊंची पट्टी है और ये छोटी पट्टी है। अब हम और एक पट्टी लेकर आएंगे। अब ये क्या है? इसका रंग क्या है? ये पीले रंग का शुमारा है। ये पीले रंग का शुमारा ऊंचा है क्या? नहीं, बहुत छोटा है। सफेद रंग की पट्टी से भी ये पीले रंग का शुमारा बहुत छोटा है। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा। इसी तरह सुर्ख पट्टी से भी ये बहुत छोटा है। इसी तरह हम लंबा और छोटा ये सिखा सकते हैं। अब हम ऊंचा और छोटा एक और वसीले का इस्तेमाल करके देखते हैं। ये सुर्ख मुकब है और ये
नीला मुरब्बा है। इसमें सुर्ख ऊंचा है और नीला छोटा है। इसी तरह एक छोटा पीला ब्लॉक लेंगे। इसमें से कौन सा ऊंचा है और कौन सा छोटा है? सुर्ख मुकब ऊंचा है, पीला शुमारा छोटा है। इसी तरह बड़ा और छोटा इस तस्वुर को भी हम समझा सकते हैं। ये बड़ा है और ये छोटा है, इससे ये बड़ा है। कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ये हम समझा सकते हैं। इस तरह कौन ऊंचा कौन छोटा ये समझा सकते हैं। बच्चे अक्सर छोटे और बड़े के बारे में गुफ्तगू करते रहते हैं। बच्चे छुट्टियां खत्म करके आने के बाद अक्सर वो बड़े होने की बात करते हैं। अरे तुम तो ऊंचे हो गए हो, ऐसा उस्ताद बोलते हैं। बच्चे भी, सर देखिए मैं भी ऊंचा हो गया हूँ, पहले तो वो मेरे से ऊंचा था, ये सब बोलते हैं। इसी तरह क्लास में भी मशक की जा सकती है। किसकी पेंसिल लंबी है? बच्चों को लंबा छोटा ये असातिज़ा बोलने की बजाय वो कह सकते हैं सब लोग अपनी पेंसिल निकालें, किसकी पेंसिल लंबी है किसकी पेंसिल छोटी है, इस तरह वो कह सकती है। जब तुम ज्यादा लिखोगे तो तुम्हारी पेंसिल भी छोटी हो जाएगी। इस तरह से हम क्लासरूम में इसके मुतालिक बात कर सकते हैं और मशक कर सकते हैं। तस्वीरें बनाने कहें, बच्चों को तस्वीरें बनाने के लिए कहेंगे। इस तरह की एक शक्ल बना ले और एक छोटी शक्ल बना ले। बच्चों को पहले से रंगों की पहचान है। अब हम बच्चों से कहेंगे कि कौन सी तस्वीर ऊंची है। जो ऊंची है इसमें रंग भरो, जो छोटी है इसमें मत भरो, जो ऊंची है इसमें रंग भरो। फिर वो इन तस्वीरों में रंग भरना शुरू करेंगे। अब वो इन खाकों में रंग भरेंगे। उस्ताद चलते फिरते देख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा छोटी शक्ल में रंग भरता है तो उस्ताद की समझ में आता है कि इसकी बात समझ में नहीं आई, तो वो उसे दोबारा समझाता है कि ये ऊंचा है, इसमें रंग भरना है, तुम्हें इसमें रंग भरना है, छोटे में नहीं। तो इस तरह कद्र पैमाई भी साथ साथ चलती रहती है। इसके बजाय बच्चे उनके पसंद की तस्वीरें भी बना सकते हैं। जैसे कोई लंबी चीज, जैसे सांप, जरूरी नहीं वो ऊंची हो, बल्कि वो जमीन पर रहने वाली लंबी चीजें भी हो सकती हैं। जैसे लंबा सांप, गिरगिट लंबा होता है या सांप लंबा होता है ना? इसी तरह किसके बाल लंबे होते हैं, इस तरह से हम क्लासरूम में बात कर सकते हैं। किसके बाल लंबे हैं, किसके बाल छोटे हैं। हाँ, इस तरह की गुफ्तगू हम कर सकते हैं।